Okay. Now, we are going to do this session because, and I want everybody to have notebook and pencil so that they can jot the points on the piece of paper. And more importantly, based on this lecture, there will be a test. There will be a test on Wednesday, and there will be a test on Friday as well. So there will be test on Wednesday and Friday based on the session that you're going to do. I hope this is clear to you, everybody. So based on today's session, there will be a test that will be conducted on Wednesday and Friday. Is it getting clear, everybody? Yes or no? Okay, great. Now, today's session, is basically not a session that, I'm just going to give you, today I'm going to give you the paper, the paper or the content of the examination that will be asked on Wednesday and Friday. So I'm going to take important topics of speaking. I'm going to take phrases, vocab and idioms. And from this paper today, the content that I'm going to take today, you are going to be asked questions on Wednesday and Friday. I hope I am clear to everybody that there will be a test on Wednesday and Friday. Separate invitations will be provided to you people at 7 p.m. or 8:30 p.m. And based on that, the test will be conducted. Okay, now let us get started with, let me give you a small example of speaking before we get started. I know that, for example, speaking, many of you know, many of you don't know, but as you know that speaking consists of three parts: part one, part two, and part three. In part one, you will be having introduction, wherein you will be asked questions about yourself, about family, about your friends, etc., etc., etc. The second part is a part in which you are given a topic and you are required to jot the points on the piece of paper, and you are required to speak consistently and continuously for a duration of 90 seconds to 120 seconds. And finally, the part three of your speaking is going to be a two-way discussion or counter questions. So just for a kind reminder, there are three parts of speaking. We are not going to concentrate today on part one and part three. We are only going to concentrate today on part two, wherein you are going to be asked a topic, given a topic. For example, this is part two, students. ये आपका part two है. So you can see over here, a topic is given to you. In this case, it is describe one of your friends, and you are supposed to speak on this topic for, for almost 1.5 to 2 minutes. Now, as you can see, students, that, this topic is divided into three parts. The part is the topic itself, part one. I'm talking about part two topic. This is what I'm talking about. And over here, there are three, this topic, this cue card that I talk about, you can call, people call this by different names. Many call this as cue card, many call this as clue card, and many call this as individual long turn. So there are lots of ways, by many are also calling this as cue card. So there are lots of ways by people call this second part of the speaking as, but let me tell you, let me bifurcate the second part. As you can see, this part consists of basically three parts. Number one is the topic itself. In this case, it is describe one of your friends. In the second part, you are supposed to, there are points being given: how you met, how long you have known each other, how you spend time together, and finally you are asked and explain why you like this person in this case. Now let me tell you that, all these points are required to be covered when you speak in IELTS. And the most important thing, I'm just posing a question in front of you. Out of all these bullet points, for example, there are three bullet points given over here. These are three bullet points: 1, 2, and 3. And this is basically, you need to explain. This is the last part. Can you tell me on which of these 4 points? I'm putting 4 because 1, 2, 3 bullets, and finally the last line. On which of these 4 lines will you be able to speak more? Can you tell me 1, 2, 3, and 4 out of these 4 points? On which of these points will you be able to speak more? Yes, can you tell me, just guess on which of these points? The fourth point. The fourth point is the point, because you over here, how you met, you may not be able to extend it for more than 1 or 2 lines. Secondly, also how long you have known each other, again you might not be able to speak for more than 1 or 2 lines. And last, how you spend time together, again 2 or 3 sentences. But explain why you like this person is the topic, is the line in which you can do lots of things. You can make a story. This is basically your line. This is the line that will help you
to stretch your speaking for almost 1.5 to 2 minutes. So this is very important line that you need to understand. Okay, now I am going to tell you one important thing. I'm not going to go into the marking criteria. I hope you all know these are the marking criteria of IELTS speaking. The first one is fluency, second is lexical resource, third is grammatical range and accuracy, and fourth is pronunciation. I'm not going to go into detail because this is again a different topic altogether. But today I'm going to concentrate more on lexical resource. This is the area which I'm going to concentrate. And I'm also going to give you topics which will be coming in Wednesday or Friday examination. Now, before we go ahead, let me tell you that these are important part 2 topics to do before your examination. Now, before we do that, let me share a new slide to you. Just a minute. Let me share a new slide to you. Okay. Can you see a new slide, new share? Everybody, can you see a new share? Yes or no? मैंने एक नई चीज शेयर की है, आपको दिख रही है ना? You can see that. Very good. Now I'm just scrolling this paper. मैं आपको सिर्फ scroll कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे इसको scroll कर रहा हूं, आप सिर्फ देखिए. I want you people to just go to the topics, you know, very slowly. Just इसको scroll कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इसको मैं scroll कर रहा हूं, ठीक है? शांति से इसको देखिए and tell me what exactly this is. ये देखिए अलग अलग topics है. I'm just going through it very very fast. जस्ट हमें इस पे डिस्कशन नहीं करना है, मैं ये टॉपिक दिखा रहा हूं आपको. डिस्क्राइब अ क्लासमेट, डिस्क्राइब अ स्पोर्ट्स पर्सन, डिस्क्राइब समवन यू नो, ठीक है, डिस्क्राइब समवन यू नो अबाउट हु हैज एन अनयूजुअल हॉबी वगैरह वगैरह. सो दिस आर डिस्क्राइब अ यंग चाइल्ड, डिस्क्राइब समवन हु इज वेल नोन इन योर टाउन, म्यूजिशियन, सिंगर वगैरह वगैरह वगैरह. सो वैसे मिला के ये जो टॉपिक्स है, ये तकरीबन मेरे पास जो टॉपिक का लिस्ट है, दिस आर 101 टॉपिक्स. These are 101 topics that I have got on this page. Is it getting clear? Now I'm just going to ask you a question, that are you going to prepare on all these 101 topics? Yes or no? Are you going to prepare on all these 101 topics? Yes or no? Now the question mark is, yahan pe kaam karega, yahan pe fark padega, how whether you're going to work like a smart person or you're going to work like a donkey. Ye I am sorry that I'm utilizing this word donkey, because गधों की तरह काम करोगे तो ये 101 वर्ड्स टॉपिक्स करने में आपका दम निकल जाएगा. यू नो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू ऑल दिस टॉपिक्स. हर एक के लिए अलग अलग आंसर बनाना, 1.5 से 2 मिनट बोलना. सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो उसके लिए according to my knowledge, let me come down to that slide once again. So I'm coming back to this slide. I showed you 101 topics. अब मैं बताना चाहूंगा, and you will be very much surprised, ये जो 100 टॉपिक्स थे, वो सारे के सारे टॉपिक्स इस टॉपिक्स पे डिपेंडेंट है. ये 6 टॉपिक्स पे डिपेंडेंट है. ये सारे के सारे टॉपिक्स, आई एम रिपीटिंग, यू माइट बी एस्टोनिश्ड, you might be surprised that all this 6 topic, all this 100 topics were dependent on this 6 topics, more or less. I would not say I mean exactly, but more or less you can say that those 100 topics were dependent on this 6 topics. I hope you are understanding what I'm trying to say. Yes or no? मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जो 100 टॉपिक्स आपने देखे, वो सारे के सारे टॉपिक्स मोर और लेस were dependent on this topic. So I am repeating this topic. The पहला टॉपिक जो है वो ये है, describe a person, someone you admire, a family member. So you know, that's the first topic. The second topic is describe a place. The third topic is describe an event, a festival celebration. Describe an activity. That's the fourth topic, swimming, sport, game or chess. Fifth topic is describe your favorite book, film, advertisement or website. And finally describe an object or a gift that someone or something you use. इससे क्या निकल के आता है? Can you tell me what does this mean? I am trying to pose a very important question to you, that what does this mean? इसका मतलब क्या हुआ? I want answers from you people. Let this session be interactive. इसका मतलब ये हुआ कि आप वो 100 टॉपिक्स करने जाएंगे तो आपके तकरीबन 1 या 1.5 महीना निकल जाएगा. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट रीड एवरी टॉपिक, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट इफ यू प्रिपेयर, एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो ये टॉपिक्स में से ही आएगा, बट आई कैन श्योरली से दैट इफ यू प्रिपेयर दिस टॉपिक, अगर ये आप टॉपिक प्रिपेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल, नो ऐसा नहीं कहा मैंने पूजा कि यू नीड टू डू ओनली दिस. लेट मी टेल यू, you don't need to do only this topics, but what I am trying to say, अगर ये 6 टॉपिक करते हो, इसमें 6 में भी अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, मतलब there are 5 to 6 more topics. अगर ये 6 टॉपिक करते हो, let me explain you, I repeat, अगर आप ये 6 टॉपिक करते हो,
and if you do related vocabulary to this 6 topics, more or less you are taking care of 80 to 100 topics. I hope these things are clear to you. अगर ये 6 टॉपिक करते हो and the related topics which are shown over here, more or less you are basically taking care of 80 to 90 topics. Is it getting clear or not, everybody? Yes or no? क्लियर हुआ आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ओके, अब मैं बताना चाहूंगा द अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, लेट अस टेक अ फर्स्ट थिंग, लेट मी टेक अ फर्स्ट टॉपिक, डिस्क्राइब अ पर्सन समवन यू एडमायर, अ फैमिली मेंबर। तो ऐसे केस में आपको दो चीजें करनी है, क्योंकि पर्सन के टॉपिक्स बहुत आते हैं, बहुत टॉपिक आते हैं। लेट मी गिव यू, पहले मैं एक काम करता हूं, आपको समझाता हूं कि कैसे आते हैं। देखिए, आई जस्ट शो यू एन एग्जांपल, जस्ट अ मिनट। Describe a teacher, describe a famous person, describe a friend, describe a family member, describe a child, describe someone who helps people, describe someone who does something well. What does this mean? तो क्या आप सारे के सारे टॉपिक्स अलग अलग करके बनाना चाहोगे? अगर ये एक दो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, देयर आर 7 टॉपिक्स, एंड लेट मी टेल यू देयर आर 25 to 30 topics based on persons. I repeat, there are 25 to 30 topics based on person. So if you go on doing all these topics, let me tell you, IELTS cannot be completed even in a year. So it may take even longer time than year. So in that case, it is very very important कि आप बुद्धिजीवी से काम करें, बुद्धिमत्ता से काम करें. What you need to do is, what I'm trying to say is that, let me get back to this point once again. So over here, ये 6 टॉपिक पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एंड दैट इज वेयर व्हाट आई एम गोइंग टू डू ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे. आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट ऑफ दिस टॉपिक्स. तो नंबर 1, लेट मी डिस्क्राइब फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डिस्क्राइब ए पर्सन. अगर पर्सन का टॉपिक आता है तो आपको दो चीजें करनी है. नंबर 1, you need to have vocabulary on appearance and you need to have vocabulary on character. पहली बात, वो दिखने में कैसा है, नंबर 1, और वो उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा है, इजी गोइंग है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, तो उसकी दो की ही वोकेबलरी आपको प्रिपेयर करनी है. इज इट क्लियर और नॉट, एवरीबडी? So when you talk about a person, you only need to take care of two things. Number 1, you need to take care of appearance, number 1, and number 2, you'll have to prepare vocabulary based on character. तो ये हुआ आपके दो टॉपिक. So these are two topics. इसको दो मान के चले आप. You need to understand कि इसको दो मान के चले. Number 2, describe a place. अगर आपके पास नोटबुक और पेंसिल है, let me tell you students, I may or may not give you this video. I repeat, I may or may not give you this video. मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं वीडियो ना दूं, लेकिन मेरा इंटेंशन ये है कि आप ये लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से सुने. ये मान के चलना कि विशाल सर वीडियो का लेक्चर रिकॉर्डिंग दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, आई विल गिव यू एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं हो सकता शायद. आई मे नॉट गिव यू दिस वीडियो, सो एंड द टेस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी टेकन. वो तो सत्य है, Wednesday and Friday the test is going to be taken. So I recommend you people to concentrate. अगर आपके पास नोटबुक और पेंसिल है तो मार्क डाउन कर दीजिए. नंबर 1, you'll have to prepare on 6 topics. I mean, ये 6 टॉपिक में आपको कौन से अलग अलग टॉपिक्स पे प्रिपेयर करना है. नंबर 1, डिस्क्राइब ए पर्सन इन विच यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट अपीयरेंस एंड कैरेक्टर. इन दोनों की वोकैबुलरी आप प्रिपेयर कर दीजिए. अपीयरेंस में वो कैसा लगता है दिखने में, उसके ऊपर आएगा. एज फार एज कैरेक्टर इज कंसर्न, हम लोग स्वभाव की बात करते हैं. इन द सेकंड टॉपिक यू आर रिक्वायर्ड टू टॉप प्रिपेयर डिस्क्राइब अ प्लेस. इसमें मैं आपको दो चीजें कहूंगा. नंबर 1, एक आप नॉर्मल प्लेस ले लीजिए, एंड सेकंड थिंग इज हिस्टोरिकल प्लेस. सो यू नीड टू टॉक अबाउट टू प्लेसेस, टू थिंग्स. इन प्लेस यू नीड टू टॉक अबाउट टू थिंग्स, मेमोराइज टू थिंग्स. नंबर 1, कोई भी एक प्लेस, लीजर एक्टिविटी जैसे कि गोवा, गोवा आप ले सकते हो, लेकिन कभी कभार जे स्पेसिफिकली आस्क हिस्टोरिकल प्लेस. when they are asking historical place, you cannot talk about Goa. Goa is a tourist place, isn't it? So आपको दो टॉपिक इसमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे. प्लेस मतलब टूरिस्ट प्लेस, एंड सेकंड वन इज हिस्टोरिकल प्लेस. इन द थर्ड पॉइंट, डिस्क्राइब एन इवेंट. तो इवेंट में आपको यहाँ पे दो चीजें करनी है. एक तो फेस्टिवल के बारे में कीजिए, और किसी का सेलिब्रेशन, फॉर एग्जाम्पल किसी की एनिवर्सरी है, किसी की बर्थडे है, वगैरह वगैरह वगैरह. तो यहाँ पे दो टॉपिक होंगे. आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडी, and I hope I am not going fast. I hope I am not going fast, क्योंकि काफी चीजें मुझे आज कवर करनी पड़ेगी, because I'll have to cover up lots of things today, so I'll have to go a little bit faster. Is it getting clear everybody? Yes or no? Okay, great. So first describe a person, second is describe a place, number 2. Number 3 आपको जो करना है वो describe an event, a festival or celebration. मैंने यहाँ पे आपको दो चीजें कही थी. You prepare anything about festival, number 1, and secondly you talk about, you prepare something about birthday event,
you can talk about anniversary, you can talk about anything. So birthday या anniversary आप ले सकते हो. In the fourth topic, you need to talk about, आपको दो चीजें करनी पड़ेगी. Describe an activity. Here you need to talk about, आपको दो चीजें कभी कभार वो लोग स्पेसिफिकली पूछते हैं, talk about sport. तो sport में you cannot talk about chess. That's a game. So don't, make sure that, you don't do that. So आपको एक दो टॉपिक प्रिपेयर करने पड़ेंगे. First, swimming ले सकते हैं आप. And secondly, you can talk about chess because that is what is going to be coming under game part. तो दो चीजें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी यहाँ पे. नंबर वन स्पॉट जिसमें आप स्विमिंग ले सकते हो, एंड सेकंड इज गेम जिसमें आप चेस ले सकते हो. number of cases many students have committed blunder. Sometimes they are asking a topic, your favorite game. वहां पे वो लोग क्रिकेट बोल देते हैं. That is not game, that is basically sport. So it is very very important to take care of that part. पांचवा जो क्लू कार्ड है, डिस्क्राइब योर फेवरेट बुक. फेवरेट इसमें चार चीजें ज्यादातर आती है. फर्स्ट इज बुक, सेकंड इज फिल्म, थर्ड इज एडवर्टाइजमेंट एंड फोर्थ इज वेबसाइट. तो इस पे आपको चार टॉपिक पे प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑन फेवरेट बुक, यू नीड टू प्रिपेयर ऑन योर फेवरेट फिल्म. ऐसा होगा, ऐसा करना हो तो मैं ये चाहूंगा फिल्म में आप हिस्टोरिकल फिल्म ले लीजिएगा. डोंट प्रिपेयर ओनली अ फिल्म बिकॉज समटाइम्स दे स्ट्रेटेजिक कैटेगोरिकली आस्क फिल्म बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट. तो आप क्या करना, दो अलग अलग मत करना. फिल्म ऐसे ले लेना जो हिस्टोरिकल इवेंट पे बनती है. इज इट क्लियर एवरीबडी? सो आपको बुक लेनी पड़ेगी. नंबर वन, यू नीड टू प्रिपेयर ऑन बुक. ठीक है. थर्ड, सेकंड इज फिल्म. एडवर्टाइजमेंट, कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट वेरी बहुत, फॉर एग्जांपल इट गेव यू लॉट्स ऑफ नॉलेज, इट वाज फनी एडवर्टाइजमेंट. ऐसी कोई भी चीज आप ले सकते हो. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, यस बायोपिक भी ले सकते हो. एंड फाइनली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ वेबसाइट दैट तो वेबसाइट भी आप ले सकते हो. सो ये सारी चीजें, ये यहाँ पे चार टॉपिक पे प्रिपेयर करना है. नंबर वन इज बुक, second one is anything. I am coming to the vocabulary of these topics, don't worry. I am coming to the vocabulary of these topics, step by step, don't worry. And finally you can talk about a gift. Gift पे कह सकते हो, you can talk about a gift, that बहुत सारे topics gift पे आते हैं. Describe a gift that you have given to somebody, describe a gift that you have received from somebody, your favorite memento, your favorite souvenir, describe something that you own which is important to you. ये सारे के सारे जो topics मैंने अभी बोले, they are dependent on the sixth number, that is describe an object. I hope these things are clear to you. I hope you can take a screenshot of this. I want you people to take a screenshot of this. इसका screenshot ले लीजिए आप. और इसका मोमेंटो मतलब कि आपको किसी, गुजराती में इसको कहेंगे स्मृति चिन्ह. अगर आपने कोई परफॉर्मेंस किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने नाटक किया है, फॉर एग्जांपल यू प्लेड, आपको शायद पता होगा इंडिया और देयर इज अ मैच, क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड एट द एंड ऑफ द मैच पीपल आर गिविंग दिस सोविनियर्स. मोमेंटो दिया जाता है कि याद रहता है कि ये क्या है. दैट इज व्हाट वी कॉल एज मोमेंटो. Is it not moment, memento? Understood? So I hope this is clear, everybody. I hope this is clear. I'm not going to go to the chat box again and again. Please let me know this is clear. So you need to prepare on all these 6 topics. Very very important. Okay, ठीक है. Okay, now let us go to the कैसे इसको बोलना है. First and the foremost thing, for example, these are the phrases that you can utilize to speak. ये ऐसे phrases है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो while speaking. ये पूरा जो आज का लेक्चर है is more or less dependent on second part of speaking, my dear students. ये second part जो speaking का है उसके ऊपर ये पूरा topic more or less is dependent on second part of speaking, because many a times students complain that we are not able to speak for more time. And let me tell you, this is what my experience says. Even if you're coming from strong English medium background, I repeat, even if you're coming from strong English medium background, there are topics in which you will not be able to consistently or you won't be able to sustain for 1.5 to 2 minutes. Let me give you a small example. A topic like a wild animal you like the most. It is very difficult to speak on a topic like wild animal you like the most, for a span of 1.5 to 2 minutes. You cannot bluff when they are asking you a wild animal, and if you're spoken about tiger, you need to specifically say that yes, tigers are found in Ranthambore. You cannot say that tigers are found in Sasangir. You cannot bluff this way. So these are the topics that you need to memorize and prepare. ये ऐसे topics है जो आपको memorize ही करने पड़ेंगे. Okay, now जैसे कि for example, you can see on the left hand side of your screen, this is a small topic, clue card topic, an example of a clue card topic. Describe a person you admire, and then there are 3 bullet points that you need to cover, and finally the main point, why you admire on her.
So you can start your essay, I mean, speaking topic like this. Well, I'd like to talk about, so these are the phrases that I want you people to memorize. ये phrases ऐसे है जो आप clue card में इस्तेमाल कर पाओगे. Then when you talk, this is the first point. So when you talk about the first point, you can utilize these phrases. The first thing I'd like to mention is, when you're talking about the second point, you can talk about this going on to my next point. आप ऐसे करके start कर सकते हो. The third point, progressing to the topic of, this is how you can start the third point. I'm talking about this one. And finally, I'd like to discuss, तो इसके बारे में ये point. I hope this is clear. ये ऐसे phrases है जो आप speaking right part 2 में इस्तेमाल कर सकते हो. And they are very important phrases that will help you. आप इसके coherence बनेगा. इससे क्या होगा? इसका coherence बनेगा. For example, whatever you speak will be having logical continuity, because if you say, जो 4 पैरामीटर्स है उसमें एक पैरामीटर कोहेरेंस भी है स्पीकिंग में. सो दिस पॉइंट्स विल गिव यू द कोहेरेंस. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? कैन यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? लेट मी नो. Clear? I may or may not give you the video recording. Please let me know. I am very clear on that. I may or may not give you the video recording. I may or may not give, इसलिए कह रहा हूं कि आप ध्यान से ये लेक्चर को पढ़ो. Clear? Okay. Now I am going to go further. I am going to go further. The first topic that I am going to take is this. जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहला था जो टॉपिक हमारा, डिस्क्राइब अ पर्सन. एंड there were two things that I told you to prepare. The first one is appearance and second one is character. तो ये है उसकी vocabulary. This is the vocabulary that you can memorize and prepare. So I'm just going to go through this very very fast. So when we talk, दो चीजें रहेगी, आदमी दिखता कैसे है और उसका कैरेक्टर कैसे है. I'm just reading it in front of you. शांति से उसको देखिए, बड़ा मजा आएगा. जो bold words है, these are the vocabulary. This is a lexical resource that you are required to prepare. Clear? So I'm talking first about appearance. I'd like to talk about my aunt. Her name is Marta and she is quite a character. She is middle-aged but has a youthful experience. वो भले middle age है लेकिन she is looking young. She is a little overweight, I suppose, but not too much. She has a friendly round face framed by thick black hair. She has a lovely complexion. कितने beautiful words है. And she is always well turned out. She actually always looks like she is going out for the evening to somewhere special. हर वक्त वो ऐसे लगती है जैसे कहीं पे जाने वाली है. There is never a hair out of place. बहुत सुंदर कीवर्ड है ये, बहुत सुंदर फ्रेज है. There is never a hair out of place का मतलब उसका बाल कभी बिखरे बिखरे नहीं होते, बिल्कुल एडजस्ट किए होते हैं. I always thought that she bears a striking resemblance. Striking resemblance का मतलब होता है किसी के साथ मुझे लगता है कि ये for example इसके जैसी दिखती है. Then she wears glasses, okay, and always seems to have different pair of every time I see her. I like the way she looks because she wears clothes that are right for her age. कितना सुंदर है. She wears clothes that are right for her age. It's a very cool, wonderful colloquial expression. वो ऐसे कपड़े पहनती है जो उसके उम्र के हिसाब से उसको ठीक लगे, मतलब बेहतर लगे. And manages to look glamorous. Any questions, any doubts on this, students? Yes? Enjoying this? Yes or no? तो ये सारे phrases आपको याद रखने हैं. You need to remember these phrases, students. और ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो for example ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है. और मैं बताऊं आपको, ये चीज आप डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हो. You can utilize this in your day to day life exactly. Okay. अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टर की. ये दूसरा पार्ट है. मैंने बताया था इसमें दो चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेल टर्न आउट मीन्स वो अपने आप को प्रेजेंट करती है. दिस इज हाउ शी प्रेजेंट हरसेल्फ. इज इट गेटिंग क्लियर? शी इज वेरी प्रेजेंटेबल. शी इज ऑलवेज वेल टर्न्ड आउट का मतलब होता है शी इज वेरी प्रेजेंटेबल. अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके. देन आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर. अगर कैरेक्टर की बात करें तो आपको ये चीज याद रखनी है. दिस वॉज फ्यू ईयर्स अगो नाउ एंड शी वॉज माई टीचर. आई एम टॉकिंग अबाउट माई टीचर at a time when I was getting a little bored with being at school. Unlike some, okay, I'm starting from here. Miss Thomas never lost her temper. Never lost her temper का मतलब वो अपना दिमाग कभी गवाती नहीं थी. She was very calm and easy going. Easy going मतलब जिनसे आप you can go along with them very easily. You don't need to worry about कि भाई इसको ऐसा लगेगा ऐसा नहीं. She was very broad minded. Broad minded का भी इस्तेमाल कर सकते हो. Then she had a great sense of humor. This is what you can talk about. And अच्छा, ये बहुत वर्ड अच्छा है. And she would always bend over backwards. What is the meaning of bend over backwards? Yes, can you tell me what is the meaning of bend over backwards?
यस, मतलब वो किसी भी हद तक जा सकती है किसी को भी हेल्प करने में। वो अपनी कमर वो अपनी फॉर एग्जांपल मेहनत ऐसा करेगी कि किसी को भी हेल्प करेगी। शी इज वेरी हेल्पफुल, दैट इज व्हाट वी कॉल एज नॉट डाउन टू अर्थ, ऑलवेज हेल्पफुल। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है किसी को भी हेल्प करने के लिए अपनी कमर झुका देगी, इसका मतलब होता है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। देन देयर इज अ वर्ड लाइक पुट अस फर्स्ट, वो हर वक्त बच्चों को आगे रखेगी, अपने मोटिव मतलब अपने इंटरेस्ट को पीछे रखेगी, बच्चों के मोटिव को आगे रखेगी। देन शी इज हाईली रिस्पेक्टेड, बहुत रिस्पेक्टेड है। एंड फाइनली मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब होता है जो अभिमानी जो आता है उससे बिल्कुल विरुद्ध। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से somebody is a very proud person, is a is a person is a very is a very haughty person, haughty मतलब बहुत अभिमानी आदमी है। तो अभिमानी का सीधा ऑपोजिट होता है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब जो शांति से रहता है। जैसे कि अगर किसी के पास बहुत करोड़ों रुपए है, लेकिन फॉर एग्जांपल उसको देख के ऐसा नहीं लगता, एरोगेंट नहीं है। मॉडेस्ट का एग्जैक्ट, या एरोगेंट इज द ऑपोजिट ऑफ मॉडेस्ट, वेरी गुड। एंड देन देयर इज अ वंडरफुल वर्ड कॉल्ड सेल्फ इफेसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ इफेसिंग? प्रयत्न करेंगे सेल्फ इफेसिंग। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ इफेसिंग? सेल्फ इफेसिंग का मतलब होता है कि अपनी उपलब्धियों को लोगों के सामने फ्लॉन्ट ना करना। फ्लॉन्टिंग का मतलब दिखावा ना करना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ मल्टी मिलियनर, for example if I have written 50 books on IELTS, and if I go on showing to the people that I have written 50 books on IELTS, that means I am not self effacing. सेल्फ इफेसिंग का मतलब होता है अपने आप को किसी के सामने दिखाना नहीं, अपने आप में ही रहना। कोई पूछता है भाई आपने कितनी बुक लिखी, तो बात अलग है कि 50 बुक लिखी मैं ऐसा बताऊं, but I would not be telling that by myself. Understood? That is what we call as self effacing. Very good, do not show off. And finally you can also utilize words like introvert, extrovert, ambivert. Introvert का मतलब होता है गुजराती में अंतर्मुखी आदमी। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है सोशेबल, बहुर्मुखी आदमी। फॉर एग्जाम्पल जिनको सोशेबल इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है, दोस्त जल्दी बना देते हैं। और जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है उसको आप कहेंगे एम्बीवर्ट। सो अ पर्सन हु कैन बी इंट्रोवर्ट, फॉर एग्जाम्पल जिसको अकेले में भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्सट्रोवर्ट शायद इतने सारे लोग आए उनके साथ भी उनको कोई इश्यू नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल तो ऐसे जो लोग होते हैं इट्स बेसिकली a combination of introvert and extrovert, that is what we call as ambivert. अब आप जस्ट गौर कीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर आपने इतने वर्ड्स इस्तेमाल कर दिए हैं, डोंट यू थिंक कि ये कोई भी टॉपिक आता है, फॉर एग्जाम्पल कैन आई नॉट यूटिलाइज दिस वर्ड्स इन ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स? लेट मी नो। मोर और लेस अगर आपने ये वर्ड्स इस्तेमाल कर दिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेमोराइज दिस वर्ड्स, मैं आपकी बुद्धि खोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपकी बुद्धि खोलना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल दैट इफ यू मेमोराइज दिस वर्ड्स, डोंट यू थिंक दैट मोर और लेस, मैं नहीं कहूंगा कि सारे के सारे वर्ड्स का इस्तेमाल हो सकता है, बट मोर और लेस यू कैन यूटिलाइज दिस वर्ड्स इन एनी वन ऑफ दिस टॉपिक्स। जस्ट इमेजिन कीजिए, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए याद कीजिए, बिकॉज मुझे पता है कि फॉर एग्जाम्पल अ गुड वर्ड, जैसे कि अगर आपने बोल दिया यू आर डूइंग द स्पीकिंग, जस्ट आपने ये इस्तेमाल कर दिया बेंड ओवर बैकवर्ड्स, तो इससे पता चल जाता है आदमी को, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर को, कि दिस गाय हैज गॉट डिफरेंट लेवल ऑफ इंग्लिश। इज इट गेटिंग क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीधा ये छलांग लगा देगा from 6 bends to almost 7.5 bends. So this is the first topic, describe a person. Then the second topic comes is describe a place. तो प्लेस का अगर कोई टॉपिक आता है तो आप ये वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। लेट मी यूटिलाइज लेट मी गो थ्रू इट फास्टर। फर्स्ट इज अ स्प्रॉलिंग सिटी। स्प्रॉलिंग सिटी मतलब जिसमें बहुत चहल पहल है, दैट इज व्हाट वी कॉल ए स्प्रॉलिंग सिटी। देन इज अ वर्ड कॉल इट इज गॉट अ फैंटास्टिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर कोई भी प्लेस के बारे में आता है then you can talk about these are the words that you can memorize. I'm not going to read everything, but I'm just going to explain you a brief of all this words. Then so it is easy to get around. Get around का मतलब कहीं पे भी जाना आसान हो जाता है, कहीं पे, wherein there is a good public transportation system. When you go to, if many of you might have visited Europe, many of you might have visited outside of India. For example अगर सिंगापुर भी गए हो तो उसकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छी होती है, यूरोप की तो बहुत अच्छी है। सो ऐसे केस में इट इज इजी टू गेट अराउंड, इजंट इट? सो यू कैन से दैट कोई भी टॉपिक प्लेस का आता है, भले उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छी हो या ना हो, आप कह सकते हो कि इट हैज गॉट अ फैंटास्टिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड हेंस इट इज इजी टू गेट अराउंड। गेट अराउंड एक बहुत अच्छा कोलोकियल सेंटेंस है जो एक सुलझा हुआ 7 और 8 बेंच का आदमी इस्तेमाल कर सकता है। ओके, then there is up market shops, मतलब अच्छे अच्छे शॉप्स है वहां पे। it has got fashionable boutiques, टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत अच्छे वहां पे। yes exactly. स्प्रॉलिंग मतलब चहल पहल वाला। देन सम लवली पब्लिक स्पेसेस है वहां पे।
Then you can talk about parks and squares. बहुत अच्छे parks and squares in the city center. On the outskirts, बहुत अच्छा word है ये. Outskirts मतलब बाहर, बाहर की तरफ outskirts बहुत है. Then there are wonderful pavement cafes. Pavement cafes अगर आपको पता होगा, for example if you talk about peripheral मतलब बाहर के, surrounding. Peripheral means surrounding areas. Is it getting clear? It basically comes from the word periphery. So peripheral का मतलब होता है surrounding. Okay. Then you can talk about pavement cafes. आपको पता होगा यूरोप में जो कॉर्नर होता है, यूरोप में आपने you might have seen this in number of movies, when there are corners पे काफी रेस्टोरेंट बाहर की तरफ ही होते हैं, वो बहुत अट्रैक्शन पैदा करते हैं. there are a lot of attractions, तो उसको हम बोलेंगे pavement cafes. And all that, and there are some great historical places of interest. Is it getting clear, everybody? So these are all the vocabulary that you can prepare whenever there a topic on describe a place is asked. कोई भी place है उसमें ये सारे words का इस्तेमाल कर सकते हो. Any questions, any doubts? I am going to the third topic now. Yes or no? Clear? Is it getting clear? Now I am moving on to the third topic. This is the third topic that I am going. Okay, ये जो है, ओके, दिस इज द थर्ड टॉपिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है. मैं इसमें ये सिर्फ इतना कहूंगा, ये जो टॉपिक है इसमें और कुछ नहीं करना है. डिस्क्राइब एन इवेंट या फेस्टिवल आता है तो सिर्फ और सिर्फ दिवाली, ईद वगैरह जो है, यू कैन यूटिलाइज दिस. इसमें मगज मत दौड़ाओ. फेस्टिवल का है तो सिर्फ और सिर्फ दिवाली मेमोराइज कर लो. Is it getting clear? So I'm just reading this entire clue card in front of you. It's a wonderfully made clue card. India is a country of festivals and celebrations. Just try to concentrate on the words which are marked in bold. But here I would like to talk about one of the most popular festivals of North India. It is called Diwali. It is celebrated. ये ऐसे words है. Let me tell you students, even if you're coming from English medium background, ये काफी ऐसे वर्ड्स है जो वहां पे एग्जाम में जब आप बोलने चाहोगे तब क्लिक ही नहीं होंगे. अगर आपने उसको प्रिपेयर नहीं किया होगा तो क्लिक ही नहीं होंगे. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये मेमोराइज कर लो आप. It is celebrated every year either in the month of October or November. The festival celebrates victory of good over evil. देखिए याद नहीं रहेगा, victory of good over evil. And its historical significance is related with Sikh and Hindu religions. According to Hindu mythology, Diwali is celebrated to mark the return of Lord Rama to Ayodhya after 14 years of exile. Exile का मतलब होता है वनवास. The people of Ayodhya welcomed him by illuminating मतलब जलाना, and decorating the place with earthen lamps. Illuminating मतलब प्रज्वलित करना. I am trying to illuminate you. Illuminate का मतलब होता है किसी चीज को प्रज्वलित करना. The preparations of the festival goes on for a month and is celebrated with great pomp and show. कितना बहुत और बेहतरीन की वो है phrase. With great pomp and show. Pomp and show मतलब बड़े जोशो आनंद से, उल्लास से उसको मनाया जाता है. People renovate, clean and decorate their houses. Houses are decorated with light bulbs and many people make floral or geometrical patterns. आपको पता होगा रंगोली करते हैं, उसको आप बोलेंगे, रंगोली का कोई वर्ड उसको फॉर एग्जांपल है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा है floral or geometrical patterns on the floor by using different colors, which is called rangoli. People exchange the goddess of wealth and prosperity. Sorry, in the evening people worship goddess Lakshmi, who is considered the goddess of wealth and prosperity. वेरियस डेलिकेसीज बहुत अच्छा है, ये किसी भी फेस्टिवल में इस्तेमाल कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ईद है, ईद में भी इस्तेमाल कर सकते हो इसको. वेरियस डेलिकेसीज इंक्लूडिंग स्वीट्स, जैसे कि शिव खोरमा है तो शिव खोरमा बना सकते हो आप. वेरियस डेलिकेसीज इंक्लूडिंग स्वीट्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे. चिल्ड्रन love to burst firecrackers and wear new clothes. I too enjoy celebrating this festival with my friends and family as it keeps us connected with our tradition. The only thing I dislike about this festival is the bursting of firecrackers. वो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उससे एयर और नॉइस पॉल्यूशन होता है और उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं. Is it getting clear? Any questions, any doubts? So फेस्टिवल आता है तो दिवाली को मेमोराइज कर लो. माइथोलॉजी मतलब पुराना जो, या क्लियर, या माइथोलॉजी मतलब पुराना, क्लियर, हिस्टोरिकल. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स माय डियर स्टूडेंट्स? वेल क्लियर्ड. ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? आई एम नॉट गोइंग टू शेयर यू द वीडियो. ओके ग्रेट, चलिए आगे बढ़ेंगे. दिस वाज द थर्ड पार्ट. देन द लास्ट वन. अब देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको करनी है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू, मैंने बताया था दो चीजें हैं. द फर्स्ट वन इज स्पॉट. विक्ट्री ऑफ गुड मतलब
विक्ट्री ऑफ गुड और ओवर एविल का मतलब होता है, मतलब जो 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 राक्षस है उस पे देवता का विजय, दैट इज व्हाट वी कॉल एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द एविल। एविल मतलब दुर्गुण आदमी, यू नो, फॉर एग्जांपल राक्षस आदमी जो होते हैं उसको आप एविल कहते हो। एनीवे, अब बात करते हैं हम डिस्क्राइब अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अब बात करते हैं, दो चीजें यहाँ पे याद रखना, गलती मत करना एग्जाम में। स्पॉट आता है तो चेस मत कह देना, मतलब यू नो कैरम, कैरम वो गेम है, दैट इज नॉट अ स्पॉट। सो आई वुड लाइक टू टेल यू, आप कोई भी स्पॉट लो, आप बना लो एक टॉपिक, बहुत अच्छा सा टॉपिक बन जाएगा। एंड देन ये चीजों का याद रखना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्पॉट है तो ये चीज तो करेगा ही करेगा, इट हेल्प्स मी टू कीप फिट, यू नो, इट हेल्प्स मी टू गेट इन बेटर शेप, इट गिव्स अ गुड कार्डियोवेस्कुलर वर्कआउट, ये बहुत अच्छे वर्ड्स है, इट हेल्प्स मी फील रिफ्रेश्ड, rejuvenated and evigorated. What is the meaning of evigorated? What is the meaning of the word evigorated? Yes, कोई कहेगा? evigorated का मतलब होता है, evigorated का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है energized. Is it getting clear? इसका मतलब होता है it keeps me energized. Understood? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. So and finally it gives me an energy boost. So whenever you are talking about sport, तो ये चीज को याद रखो आप. Clear? एंड व्हेन यू टॉक अबाउट गेम, अगर गेम की बात करते हैं हम लोग, तो इतने इससे कह दो कि इट कैन रेज योर आईक्यू, क्योंकि अगर आप चेस खेलते हो तो इससे आपका आईक्यू बढ़ता है। इट हेल्प्स प्रिवेंट अल्जाइमर, अल्जाइमर मतलब जिनको याद भूलने की बीमारी होती है उसको अल्जाइमर कहते हैं। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, फ्रांस में, यू नो, it is not only about keeping your physical health good, it is also about keeping your mental health good. And let me share you that in Europe, you know, women look younger than their age, because they not only, you know, exercise, but most importantly they also spend time in crosswords, sudoku, आपको sudoku शायद याद होगा, sudoku से, you know, आपका दिमाग चलता है। then there's a word, you know, game like chess. So all this, you know, games जो है, it helps you to give exercise to your brain, it exercises both sides of the brain, it increases your productivity, creativity, sorry not productivity, creativity। तो ये चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं चाहूंगा आप दो बना लो, वो दो क्लू कार्ड बना लो, मेमोराइज कर लो, वन अबाउट स्पॉट and the second one is about chess. Any questions, any doubts on that students? Yes or no? Clear हो गया ये? Sure. Okay, now the fourth topic, yeah, it increases problem solving skills। देखिए यहाँ पे ये सारे वर्ड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यहाँ पे है, इट इम्प्रूव्स योर मेमोरी, इट इंक्रीजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इट इम्प्रूव्स रीडिंग स्किल्स, इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। सो सारी जो चेस की बात है। अब देखिए मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आप पीएचडी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग पीएचडी इन आईएलटीएस। सो वट एवर आई एम टेलिंग यू, इसको गांठ बांध के रख दो। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट सर मैं चेस के नहीं, मैं कैरम के बारे में बोलूँ, तो भैया बोल सकते हो आप कैरम के बारे में, मुझे कोई हर्ज नहीं, मजा आएगा मुझे भी। लेकिन जो मैं कह रहा हूं ये काफी सोच समझ के आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, तो आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वट एवर आई एम टेलिंग यू एक्सेप्ट इट। और सबको एक ही टॉपिक, यू नो, फॉर एग्जांपल ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड द सेम टॉपिक। सर रमेश भाई ने भी वो बोला, सुरेश भाई ने भी वो बोला, अरे भाई रमेश भाई सुरेश भाई का उसी दिन को नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। एंड एनी हाउ दिस आर ओनली द कीवर्ड्स, आप जो बोलते हो तो अलग है ना। सो यू कैन प्रिपेयर। तो मैं सबको ये कहूंगा कि ज्यादा दिमाग न लगाए, स्विमिंग कह सकते हो, या स्विमिंग कह सकते हो, एंड देन यू नो यू कैन टॉक अबाउट गेम है तो आप चेस प्रिपेयर कर लो। देयर इज नो वर्ड आउट, आपको उसमें दिमाग, आप सिर्फ इस पे दिमाग मत लगाओ कि यू नो ये और मैं क्या करूं, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। ओके, देन द फोर्थ वन, डिस्क्राइब अ फेवरेट बुक। ये बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक है। इस पे मैंने आपको बताया था कि आपको ये चार चीजों पे काम करना पड़ेगा, बुक, फिल्म, एडवर्टाइजमेंट एंड वेबसाइट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बुक, फिल्म, एडवर्टाइजमेंट एंड वेबसाइट, आपको इन चारों पे काम करना पड़ेगा। ओके, आई एम जस्ट राइट नाउ गिविंग यू द वोकैबुलरी अबाउट बुक। बुक की वोकैबुलरी देख लो आप। फॉर एग्जांपल, इट्स अ ग्रेट वे टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। ये बहुत अच्छा वर्ड है। इट केम हाईली रिकमेंडेड बाय माय टीचर। इट केम हाईली रिकमेंडेड इज अ वेरी नाइस फ्रेज। मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, ये जो कोलोक्वियल वर्ड्स है ये बैंड्स बहुत अच्छे ला देते हैं। इट केम हाईली रिकमेंडेड मतलब ये आई थी काफी अच्छे रिकमेंडेशन से। इसको मैंने पढ़ना चालू किया आफ्टर लॉट्स ऑफ रिकमेंडेशन। इज इट गेटिंग क्लियर? Yeah, then the mayor of Castro, it was studying, yeah, I was studying at a school, I'm not going to read that. Yeah, it was a real page turner। इसका मतलब क्या है? Can you tell me it's a real page turner? इसका मतलब क्या है guys? What is the meaning of it's a real page turner? Yes? नहीं 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 नहीं, no 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 no। ये ऐसी बुक थी जो मैंने लिखना पढ़ना चालू किया। मेरी बात सुनो, हाँ हो गया आपका काम, हो गया। मैंने, यस यस, लेट मी टेल यू,
ये ऐसी बुक थी जिसको मैंने पढ़ना चालू किया तो मैं पेज टर्न करता ही गया, इसको रखने का नाम मेरे दिमाग में आया नहीं। ये ऐसी बुक थी जो मैं पढ़ता ही गया और ऐसी इंटरेस्टिंग थी कि सोचा था 5 पन्ने पढ़ूंगा, पूरी बुक खत्म करके ही आई बेसिकली done, I mean, I left that book. So this is very, very important vocabulary. It's a very interesting book. Okay. Then it's an historical novel and the setting का मतलब वो उसके समय का था. The setting was of the historical, Mughal age. So that was the setting. It was based on, ये भी एक अच्छा सा word है. It was such a great plot. स्टोरी का प्लॉट बहुत अच्छा है. इट कट अ लॉन्ग, हाँ ये बहुत है. टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द डाउनफॉल ऑफ ए मैन कॉल्ड हेनकार्ड, द सेंट्रल कैरेक्टर. टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब लंबी बात को छोटे में अगर मुझे कहना है आपको तो ये ऐसा है कि बहुत अच्छी स्टोरी थी. ये हेनकार्ड जो सेंट्रल कैरेक्टर था उसके बारे में थी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई रियली कुडंट पुट इट डाउन. ये बहुत अच्छी है. इसको मैंने एक बार चालू किया तो मैं इसको रख ही नहीं पाया. So that is what you can say. I couldn't put it down. Understood? So these are all the phrases that you can utilize whenever there is a topic on book. Any questions, any doubts? Yes or no? Yeah, Harsh, just a minute. The other important thing that I would like to tell you is, कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुक पे नहीं करना है. You also need to prepare on film, advertisement and website. I hope this is clear to you. Understood? Yeah, somebody wanted to ask me about place के बारे में कुछ था. Yeah, somebody wanted to take a screenshot of place. Previous slide, Harsh. Yeah. Yeah, you can take this. This is what you wanted the screenshot of. Okay. Now I'm going to talk about, yeah, अब रही है गिफ्ट. अब ये बहुत, ये छठा लास्ट टॉपिक है. दिस इज लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स. ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट टॉपिक है. एंड दिस इज, इसके बारे में देखिए, ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं. डिस्क्राइब अ गिफ्ट. पहले पहले ध्यान से सुनिए इसको. There are lots of topic that comes on gift. So, I mean, yeah, you can talk about advertisement on Samsung phone. Yes, you can talk about that. Now, whenever a topic on gift comes, I always ask my students, there is no there is no brainer. What is the meaning of no brainer? Can you tell me what is the meaning of no brainer? Yes. Anybody can tell me the meaning of no brainer? What is the meaning of no brainer? No, 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 no. नो 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 नो. नो ब्रेनर मतलब दिमाग नहीं लगाना है. दिमाग नहीं लगाना है आपको. आपको दिमाग नहीं लगाना है. नो ब्रेनर का मतलब होता है डोंट थिंक अबाउट इट. मैं जो आपको बोलता हूं वही करे. दैट इज व्हाट वी कॉल एज नो ब्रेनर. अंडरस्टूड? नहीं नहीं, नो लिमिटेशन नहीं. नो ब्रेनर का मतलब होता है आपको मैं जो कहता हूं उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. मैं जो कहता हूं वही करे. इसका मतलब होता है नो ब्रेनर. अंडरस्टूड? ओके. नाउ अब मैं ये कहूंगा कि जैसे ये टॉपिक आता है डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट, अ गिफ्ट यू यूज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मैं चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के बारे में प्रिपेयर कीजिए. बिकॉज मोबाइल इज द ओनली प्रोडक्ट in which you will be able to get lots and lots of points. So whenever a topic comes on gift you have given to somebody, gift you have received from somebody, your favorite memento मतलब आप कह सकते हो ना कि for example my father, I got wonderful scores in standard 12th and hence my father was very pleased and he gave me a mobile. Is it getting clear? So you can talk about mobile. आपको mobile मिला हो ना मिला हो, that is basically it's of no, I don't care. So you don't need to worry about whether you received mobile as a gift or not. But what I am trying to say is that mobile is the only device in which you will be able to get more and more points. Is it getting clear? No brainer का मतलब दिमाग नहीं लगाना है आपको. उसको भूल जाइए. Forget no brainer right now. Right now just concentrate on this. Now I'm going to talk about this topic. Over the years I have received many gifts on different occasions from many people. मेरे साथ शांति से पढ़िए इसको. आप मेरे साथ पढ़ोगे तो भी काफी चीजें याद रह जाएगी. This consists of variety of enticing presents. Enticing का मतलब होता है लुभावनी, जो मुझे लुभाती है. That is what we call as enticing and have touched my heart, ranging from simple stationery and decoration trinkets. Decoration trinkets मतलब decoration करने के साधन, to books and gadgets. It is quite common phenomenon and I feel immensely happy to receive such thoughtful gifts. As per my thought, the best present that I have ever got was a mobile phone. During my first year of college, I came to know about this smartphone that was just launched on the market.
The phone had a lot of modern and rare features. ये जो bold है उसको इस पे जरा गौर कीजिएगा. Such as 2 cameras, increased memory, more speakers, and large touch screen among others. Made of tough materials, the phone was durable and value for money. It was comparatively cheaper than the luxury smartphones available back then along with some class leading features. That is a very nice word, class leading features. का मतलब अगर आप cars देखते होंगे, कार्स की एड आती है, उसमें लिखा होता है क्लास लीडिंग फीचर्स, मतलब उसके क्लास में सबसे ज्यादा फीचर्स इसके पास है. On the birthday that year, my uncle visited me in college and spent some time with me. While leaving, he gave me a gift box and I instantly opened it. I was surprised to see the same phone lying on the box. I was delighted upon receiving this phone as a gift, as my current phone was broken and I desperately needed a new one. मेरा जो अभी का फोन था वो टूट गया था और मुझे बहुत जरूरत थी नए फोन की. It was the most thoughtful gift in my view, as my uncle had put a lot of thought and effort into it. I was very happy and hugged my uncle. Hug का uncle मतलब मैंने उसको उनको गले लगा दिया. While thanking him profusely. Thanking him का मतलब बड़े दिलो जान से मैंने उनको, profusely का मतलब बड़े जोर शोर से मैंने उनको thank you बोला. Is it getting clear? Any questions, any doubts, students? Yes, तो गिफ्ट जो है उसके बारे में आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? यस और नो? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? क्लियर हो गए? श्योर. So these are the 5 topics. I'm just going to the last thing. So these are the important topics जिसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, and these are the topics which are going to come in the real examination. Is it getting clear? मैं बताऊंगा आपको कैसे स्पीकिंग एग्जाम होगी. I'll explain you, don't worry. But right now you need to prepare on these topics. Clear? So ये टॉपिक पे प्रिपेयर करना है. Okay, now the most important thing, I'm going to share a new thing to you. Please don't go away, it is very important. Can you see these new slides? Yes, everybody, very important. Okay, मैंने आपको दिए टॉपिक्स, आई गिव यू टॉपिक्स टू प्रिपेयर. मैंने आपको टॉपिक्स दिए. अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट idioms दे रहा हूं. I am going to give you, see, let me tell you students, there are lots and lots of idioms in, yeah, there are lots and lots of idioms that you can utilize in your day to day life. अगर आप idioms Google पे डालोगे तो हजारों idioms मिलेंगे, but many of these idioms are not important as far as IELTS are concerned. But these are the idioms that I have selected only 29 very important idioms. I repeat, I have selected 29 very important idioms that you need to utilize or you can utilize in your speaking. So I'm going through these idioms step by step. The first idiom is, I hope you are all there, everybody. Yes or no? I hope you are enjoying, or you want me to take it next time? Yes, yes, everybody, fatafat. Okay, now I am going to take this. ये idioms है, बहुत important है. Okay, ये जो idioms है बहुत important है. मैं सिर्फ आपको 29 idioms का list दे रहा हूँ. I'm going to briefly explain each and every one of these idioms, and I want you people to utilize them in your speaking. याद रहे, ये idioms का इस्तेमाल you are only going to do that in speaking. Don't utilize these idioms in writing. Let me tell you, there is a difference between writing and speaking. In writing, you are required to use a formal language. So use of idioms is not recommended in writing. But yes, you can very well do it in speaking. ये speaking कर सकते हो आप. Speaking में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा लगेगा. Okay. First is, I am taking the first idiom, my dear students. Over the moon. Over the moon मतलब आसमान में रहना. For example, कोई ऐसी चीज. So to be extremely pleased or happy, when I received a mobile phone as a gift from my father, I was over the moon. Please let me know if you are not able to understand. I'm explaining everything. Second idiom, once in a blue moon, मतलब कभी कभार होना. Happens very rarely, कभी कभार होता है. For example, इंडिया और जिम्बाब्वे की मैच है और जिम्बाब्वे कभी जीत जाता है. इंडिया 10 में से 9 बार जीतती है, जिम्बाब्वे सिर्फ एक बार जीतता है, तो जिम्बाब्वे के लिए है वंस इन ए ब्लू मून. माय फ्रेंड इज यूजुअली हैप्पी, ही इज सैड ओनली वंस इन ए ब्लू मून. मेरा दोस्त हर वक्त हैप्पी रहता है, बहुत कम बार, मतलब वंस इन ए ब्लू मून ही इज सैड.
अ पीस ऑफ केक, तीसरा इडियम, पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी। अरे तो उसके लिए देखिए मैं लिखा है, इफ यू गेट अ गुड स्कोर इन IELTS, गेटिंग अ वीजा विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। मजा आया? ये इडियम अच्छा है ना, आपके लिए है। दिस इज ऑल फॉर यू, यस और नो? द थर्ड इडियम है ना, एग्जैक्टली, ओके। द फोर्थ इडियम, अ ड्रॉप इन द ओशन। अ ड्रॉप इन द ओशन मतलब फॉर फर्ज कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं आपको बहुत एग्जांपल देना चाहूंगा। अ ड्रॉप इन द ओशन का मतलब, फर्ज कीजिए कि नो यू नीड 5,000 रुपीज, यू नीड 5,000 रुपीज एंड यू वेंट टू योर डैड, डैड आई नीड 5,000 रुपीज, और डैड ने आपको दिया सिर्फ 100 रुपए का नोट। आपको चाहिए था 5,000 रुपए और आपको दिया सिर्फ 100 रुपए। तो 5,000 रुपए जो है वो आपका ओशन है, जो आपकी डिमांड थी, और 100 रुपए जो है वो ड्रॉप था। सो मतलब आपको चाहिए था बहुत लेकिन मिला बहुत कम, तो उसको आप बोलोगे ड्रॉप इन द ओशन, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर। गवर्नमेंट डोनेटेड 1,000 रुपीज, गवर्नमेंट ने 1,000 रुपए डोनेट किए। You know, please listen to this very carefully. Government donated 1,000 rupees to each of the flood victims. जो फ्लड विक्टिम्स थे उनको 1,000 रुपए डोनेट किए। हाउएवर दिस इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, ये बहुत छोटी अमाउंट थी। ओके, देन आई एम गोइंग फॉर द फिफ्थ वन, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इट इज बेटर टू एक्चुअली डू समथिंग देन जस्ट टॉक अबाउट इट। किसी के बारे में बोल बोल करना, मैं तो ये कर दूंगा, मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, मैं 8 घंटे पढ़ूंगा IELTS में, मैं उनको ऐसा बोलूंगा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप बोलते हो उसको आप करके दिखाइए। इज इट गेटिंग क्लियर? तो एग्जांपल है, मैनी पीपल टॉक अबाउट प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट बट डू नथिंग। काफी लोग कहते हैं मैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करूंगा, कुछ करते नहीं है। while others say nothing but grow trees, लेकिन काफी लोग ऐसा करते हैं, बोलते नहीं है, करते बहुत है। नो वंडर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप IELTS के काफी स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है काफी पहले जहां पे आप थे उसी मुकाम पे वापस आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, when you attempted to do something but failed and have to try again, मैं एग्जाम्पल कहूंगा, for example, assume that there is a small cat which is trying to climb a tree. Assume that there is a small cat which is trying to climb a tree. ऊपर जाती है लेकिन वापस गिर जाती है, तो वापस गिर जाती है मतलब उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो जब जब कोई चीज आपने स्टार्ट की है उसमें आप फेल हो गए, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, उसको हम बोलेंगे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अंडरस्टूड एवरीबडी? यस और नो? एनी क्वेश्चंस और डाउट्स? यस, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इज इट क्लियर? यस और नो? आप लोग लगता है स्क्रीनशॉट लेने में अभी बिजी हो, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। ओके, ठीक है। देन पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, सातवां जो है दैट इज पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब ये हुआ कि आप, फॉर एग्जांपल, मैं इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इफ यू आर डूइंग एन इन्वेस्टमेंट, देन यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन, जैसे कि अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। यू कैन इन्वेस्ट इन, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू, आपके पास 100 रुपए है तो आप 25 रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। यू इन्वेस्ट 25 रुपीज इन रियल एस्टेट, यू इन्वेस्ट 25 रुपीज इन FDs, यू इन्वेस्ट 25 रुपीज in government bonds. So what I did is that I did not put all my eggs in one basket, because if I put all my eggs in one basket, there is a small possibility कि अगर स्टॉक मार्केट्स में मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो पूरे के पूरे पैसे चले जाएंगे। सो एडवाइस ये है कि यू शुड पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्लियर? एग्जैक्टली। इन वोग बहुत अच्छा कीवर्ड है, ये बहुत अच्छा है। या दैट्स द स्ट्रेटजी ऑफ वॉरेन बफेट। इन वोग का मतलब होता है समथिंग फैशनेबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, बेल बॉटम इज नॉट, वेयरिंग बेल बॉटम पैंट्स इज नॉट इन वोग। अंडरस्टूड? वेयरिंग बेल बॉटम पैंट्स इज नॉट इन वोग, बेल बॉटम पैंट्स पहनने अब वो फैशन में नहीं है। वेयरिंग स्लिम टाइट टी शर्ट इज इन वोग। अंडरस्टूड एवरीबडी? यस और नो? Wearing slim tight t-shirt is in vogue, whereas wearing bell bottom is not in vogue. Understood? तो ये हुआ आपका। okay, then फटाफट डाउन इन द डम्प्स, डाउन इन द डम्प्स का मतलब होता है दुखी होना। फाउंड माई फिट का मतलब होता है धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई जैसे कि आप लोग की बात करूं मैं, यू ऑल स्टार्टेड लर्निंग IELTS थ्रू करियर मेकर्स, एम आई राइट?
तो पहले 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 बहुत डिफिकल्ट लगता था, काफी बच्चे ऐसे होते हैं सर मुझे पहले दिन बहुत डिफिकल्ट लगा, देन फाइनली धीरे 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 यू स्टार्टेड फाइंडिंग योर फीट, मतलब अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल टू बिकम कंफर्टेबल डूइंग समथिंग. इज इट गेटिंग क्लियर? आपको कंफर्टेबल लग रहा है, इज इट इन? सो मूविंग टू अ न्यू सिटी वाज डिफिकल्ट एट एज फर्स्ट, बट आई सून फाउंड माय फीट. पहले कनाडा गए, पहले बहुत होम सिकनेस हुई, तो पहले बहुत डिफिकल्ट था, बट नाउ I found my feet. Is it getting clear? Set in their ways. Set in their ways मतलब not wanting to change. अगर आप अपने पुराने धक्यानुसार विचारों से वो हो तो आप चेंज नहीं होना चाहते, because you are set in your own ways. My parents are quite traditional and set in their ways. और बाद में नंबर 12 go the extra mile, बहुत इंपॉर्टेंट. go the extra mile मतलब ज्यादा मेहनत करना. मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, do much more than is required. I decided to go the extra mile and worked hard for 5 hours to get 8 bands in IELTS. Any queries, any doubts, students? एक बार देख लीजिए, कोई डाउट्स हो तो मुझे बताइए. मैं चाहूंगा एक भी बच्चा लीव ना करे, एक भी बच्चा लीव ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. ओके क्लियर? ओके आगे बढ़ेंगे. देन अ हॉट पोटैटो. देखिए मैंने ये सारे वर्ड्स जो 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 फ्रेजेस है, ये जो मैंने सारे फ्रेजेस है मैंने आपके लिए बनाए हैं. देखिए अभी जैसे कि देखिए हॉट पोटैटो का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल टॉपिक. सी तो मैंने देखिए अभी देखिए दो ही चीज चल रही है न्यूज़पेपर पे, अगर आप देखेंगे टीवी पे, एक तो कोरोना वायरस चल रहा है, हाँ या ना, और दूसरा चल रहा है सुशांत सिंह की डेथ. यस और नो? यही दो चीजें तो चल रही है न्यूज पे, आई मीन मीडिया पे. यस और नो? तो इनको आप कहेंगे, इनको आप कहेंगे हॉट पोटैटोज. मतलब अभी जो चल रहा है उसको आप बोलोगे हॉट पोटैटोज. अंडरस्टूड? तो ये जो है वो अभी बर्निंग टॉपिक्स कहेंगे इसको. मिस द बोट मतलब अपॉर्चुनिटी को गवाना. फिर 15 का मतलब है कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग. आर्म एंड लेग का कॉस्ट मतलब बहुत एक्सपेंसिव. जैसे कि अगर ये मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये शूज जो है 50,000 रुपए के शूज है, तो यार क्या ये शूज कितना पैसा है, तो रादर देन सेइंग इट इज वेरी कॉस्टली, यू कैन से दो शूज मस्ट हैव कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. आर्म एंड अ लेग मतलब बहुत कॉस्टली होना कोई चीज का. देन थ्रो इन द टॉवल, बहुत अच्छा है. थ्रो इन द टॉवल मतलब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आप सोचते हो कि IELTS मैंने एक बार दी तो नहीं बैंड्स आए, दूसरी बार दी नहीं बैंड्स आए, तो तीसरी बार आपने कर दिया भाई छोड़ो मुझे IELTS करना ही नहीं है, तो उसको आप बोलोगे थ्रो इन द टॉवल. लेकिन आपको कभी भी टॉवल थ्रो नहीं करना है, आपको पहले और दूसरे टाइम में, पहले ही टाइम में IELTS का रिजल्ट ला देना है. अंडरस्टूड? सो यू आर नॉट गोइंग टू थ्रो योर टॉवल. आर यू गोइंग टू थ्रो योर टॉवल स्टूडेंट्स? नो. We are all going to get great score in the first attempt, isn't it? Okay, great. Okay, तो ये हुआ आपका ये हो गया आपका 16th. देन 17th बेटर लेट देन नेवर. ये पता है कहाँ पे आता है? याद रखो कहाँ पे आता है, ये बहुत बार देखा हुआ है. बेटर लेट देन नेवर, याद करो कहाँ पे आता है ये, सोचो कहाँ पे आता है, मैंने बहुत बार देखा हुआ है. बेटर लेट देन नेवर. वेरी गुड जयदीप, वेरी नाइस. हाईवे पे आता है ना, आप जल्दी से गाड़ी घुमाते हो तो लिखा होता है बोर्ड बेटर लेट देन नेवर. देर से पहुंचोगे तो चलेगा, लेकिन पहुंचोगे ही नहीं तो क्या करोगे, इजंट इट? So that is basically better late than never. It is better to finish something no matter how long it takes to do. Then 14th, don't pull off until tomorrow what you can do to today. ये एक बहुत अच्छी कहावत है, बताओ याद करो. ये अपने गुजरात, ये कल करे सो आज और आज करे सो अभी. याद है? हिंदी में कहावत है जो कल करे सो, हाँ, तो उसके लिए देखिए इंग्लिश की कहावत भी है. डोंट पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे. जो आज कर सकते हो उसको कल तक मत खींचो. फिर गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट. गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट. एग्जैक्टली. गुड थिंग्स कम टू ऑल दोज, मतलब पेशेंट रहना, पेशेंस रहना, पेशेंस होना बहुत जरूरी है. बी पेशेंट, गुड विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन. क्लियर? गुड थिंग्स, जो लोग ईमानदारी से, पेशेंस से चीज चीज का ध्यान रखते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है. एंड लास्ट, देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट. इसका मतलब जो करना है अभी करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं 10 दिन के बाद IELTS की मेहनत करना चालू करूंगा, तो मैं आपको कहूंगा देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट. सर मैं 10 दिन के बाद IELTS में 6-6 घंटा पढ़ना चालू करूंगा, देन आई विल टेल देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट. भाई तेरे को करना है तो आज से कर, 10 दिन की राह मत देख. क्लियर और नॉट एवरीबडी? यस और नो? हो गया क्लियर? ओके. देन
बस 2-3 ही है. देयर इज नो मच. हाँ, ये बहुत अच्छा है. देयर इज नो मच थिंग एज फ्री लंच. इसका मतलब क्या है? देयर इज नो थिंग सच थिंग एज फ्री लंच. ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हो? ये मैं गया था यूरोप. मैं यूरोप गया था. आई वेंट टू यूरोप एंड देन आई बेसिकली वाज यूटिलाइजिंग दिस. वहां पे कोई भी चीज फ्री नहीं है. नहीं 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 नहीं. वहां पे कोई भी चीज फ्री नहीं है. कोई भी चीज आपको फ्री नहीं मिलती. इफ यू गो टू यूरोप देयर इज नथिंग इज फ्री. इजंट इट? तो वहां पे ऐसा लगता है देयर इज नो थिंग एज फ्री लंच. अगर आप सोचते हो कोई फ्री है, कोई भी चीज फ्री नहीं है. सो कुछ ना कुछ तो उसमें पैसे देने ही पड़ते हैं. इज इट गेटिंग क्लियर? ओके. फ्री एडवाइस नहीं. नो 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 नो. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच का मतलब होता है कोई भी चीज अगर आपको पानी है तो उसके लिए पैसे या कुछ तो देना ही पड़ेगा. दैट इज व्हाट वी कॉल एज देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच. आपको मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा. अंडरस्टूड? ओके. देन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. वो आपको पता है. यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. ये स्पॉट में इस्तेमाल कर सकते हो. अच्छा, ये बहुत अच्छा है. व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू. यस, इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू. इसका मतलब क्या हुआ? जहां के आप जहां पे जाते हो वहां के रीति रिवाज को आप फॉलो करो. आई रिपीट, इन 23rd इट्स अ वेरी नाइस प्रोवर्ब. इट्स अ वेरी नाइस इडियम. स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा इडियम है ये. व्हेन इन रोम, या गो विद द फ्लो. व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू. ये कहावत है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कनाडा जाते हो तो कनाडा के रीति रिवाज को फॉलो करो. इफ यू गो टू द यूएसए तो आप फॉर एग्जाम्पल पंपकिन का भी आएगा यूएसए में, तो उसको फॉलो करो. इज इट गेटिंग क्लियर? सो यू नीड टू डू फॉलो. तभी जाके आप उसको अपना पाओगे. इज इट गेटिंग क्लियर? जैसा देश वैसा रंग. वेरी गुड. सो दैट इज व्हाट वी कॉल. बट लेकिन एग्जाम में ये लिख के मत आ जाना. एग्जाम में लिखना व्हेन इन रोम. बोलना मतलब व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू. क्लियर और नॉट? श्योर? देन 24, द स्काई इज द लिमिट. चलिए, स्काई इज द लिमिट. एक मिनट. स्काई इज द लिमिट. अ पर्सन कैन अचीव एनीथिंग दे वांट. अगर इफ यू वर्क हार्ड इन एनी प्रोफेशन देन स्काई इज द लिमिट. इफ यू वर्क हार्ड in any profession then sky is the limit. Understood? And finally the last five बहुत अच्छी है. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. इसका मतलब मैं आप जो भी सिचुएशन है उसका खुले दिल से आप उसका सामना करो. आई रिपीट, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. मैं समझाना चाहूंगा. बुल मतलब जो होता है वो बुल तो आपको पता है, और उसके हॉर्न्स बड़े खतरनाक होते हैं. तो अगर आपको बुल से टक्कर लेनी है तो उसकी पूंछ को नहीं पकड़ोगे, उसके पैर को नहीं पकड़ोगे, इसकी कान को नहीं पकड़ोगे, उसके हॉर्न्स को ही पकड़ोगे. मतलब कि आपका जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम को अटैक करोगे. तो उसको बोलेंगे टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबडी? यस और नो? बहुत अच्छी वो ये इडियम है. अंडरस्टूड? I am trying different type of I am trying different type of language to make you understand, because इसको आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे. स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे. अंडरस्टूड? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से समझे. रीड बिटवीन द लाइन्स बहुत अच्छी है. रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड एंड समथिंग दैट मे नॉट बी एंटायरली क्लियर. जैसे कि अगर आपको पता होगा, लेट मी एक्सप्लेन यू. आई विल जस्ट गिव यू स्मॉल एग्जांपल. आप बिल्डर के साथ फॉर एग्जांपल, बिल्डर जो होता है आपसे दस्तावेज करवाता है. He basically makes you sign an agreement, and in an agreement you are signing. Then you should take care that you should read between the lines. काफी ऐसे conditions होते हैं, terms and conditions that you probably may not be visible, जो आपको दिखते नहीं है. तो आपको इसका मतलब क्या होता है? Please be careful. You should read between the lines. वैसे ही अगर true false not given आता है रीडिंग में, तो आप सिर्फ रीड नहीं करना है. You need to read between the lines in order to understand whether the statement is true, false or not given. Clear or not everybody? Yes or no? अपहिल बैटल. अपहिल बैटल का मतलब होता है कि बहुत ऊंचा चढ़ान. बहुत ऊंचा चढ़ान मतलब यार, गेटिंग 9 bands in IELTS is an uphill battle. I repeat, getting 9 bands in IELTS is an uphill battle. Is it getting clear? And therefore I have no time to lose. और मेरे पास समय गंवाने के लिए एक भी थोड़ा सा भी समय नहीं है. मुझे आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी. अंडरस्टूड? समझ गए आप लोग? एवरीबडी देखिए, बहुत अच्छा मत बन रहा है. देखो, गेटिंग 9 bands in IELTS is an, मैं देखिए लास्ट तीन जो फ्रेजेस है ना, इडियम्स, मैं उसकी देखिए एक सुंदर सी चीज बताता हूँ. गेटिंग 9 bands in IELTS is an uphill battle and you have got no time to lose. I hope we are all on the same page. बोलो, क्लियर हो गया? I hope we are all on the same page. सेम पेज का मतलब क्या हुआ? सेम पेज का मतलब होता है
आप शायद मेरी बात से सहमत हो. इज इट गेटिंग क्लियर? ऑन द सेम पेज का मतलब आप मेरे ही विचारों से सहमत हो. अंडरस्टूड? कितना सुंदर है, बहुत अच्छा हो गया. क्लियर? आई होप getting 9 beds in IELTS is an uphill battle. You people have no time to lose, and hence I believe that I hope we are on the same page. Any questions, any doubts, students? Yes or no? Clear? So ये हो गया आपका 29 की, ये हो गया आपका 29 idioms. अभी बाकी है पिक्चर, अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तीसरी, the third thing is left out. Just a minute. एक मिनट. अच्छा, नाउ दिस आर द वोकैबलरी. अब देखिए, काफी लोग मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि सर वोकैबलरी अगर अच्छी से मिल जाती तो अच्छा होता. So, for example, I am giving you, there are 50 words that I have selected. I repeat, there are 50 words. Let me tell you, students, there are 50 words. Yeah, I have, Rian, 2 minutes. So, there are 50 words that I want you people to memorize. पहले इसको ध्यान से सुनिए. So, ये ऐसे words है जिसका synonyms आपको अच्छा है. देखिए, I repeat, these words, this 50 words that I'm going to give you, or I'm putting right over here, you can start taking the screenshot, are those words that will be helpful to you not only in speaking, but in writing, in listening, and in reading as well. For example, let me explain you कि अगर अमेजिंग है तो अमेजिंग के बदले देखिए कितने सुंदर वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो. देखो कितने वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो. एक मिनट ठहरो, मैं जूम करता हूं इसको. इज इट क्लियर नाउ? या इज इट क्लियर नाउ? पहले बताओ, आपको दिख रहा है? Okay, so what I want is that, देखिए, for example, how you need to prepare this. Amazing है तो you need to have different words. You cannot just simply say amazing. There are words like this. So you can say incredible, fantastic, fabulous, astonishing, extraordinary. ये words आप इस्तेमाल कर सकते हो. Answer है तो respond. So I'm not going to take each and every word right now. I'm just explaining you. Just going through this very very fast. फिर जैसे awful, awful मतलब किसी का performance बहुत खराब होना. For example, if you're given IELTS and if you got 5 bands, then I will say your performance is terrible. I will say your performance is terrible. Your performance is awful. Your performance is dreadful. So वैसे मैंने what I have done is I have created 50 words. मैंने, मुझे लगता है जो words 50 है वो मैंने इस्तेमाल किए हैं. Okay, I'll send this screenshot to you. Don't worry. मैं इसकी PDF भेज दूंगा आपको. I'll send the PDF to you. Yeah. सो दिस आर ऑल. देखिए, जैसे कि अगर पता होगा आपको कि ये बहुत अच्छे वर्ड्स है, 50 वर्ड्स और उसके वोकैब. क्लियर? सो आई विल बी शेयरिंग दिस टू यू एवरीबॉडी. क्लियर? अब मेरी बात सुनिए. आई विल टेल यू हाउ द एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस. अब मैं चाहूंगा कि यस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. देखो, मैं पहले करता हूं. चलिए, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट नंबर 1? जस्ट अ मिनट, लेट मी डू वन थिंग. जस्ट होल्ड ऑन. Yeah, have you taken the screenshot, everybody? Yes or no? Number 1. या ये बहुत इंपॉर्टेंट. यस यस, यू कैन टेक दिस. मैंने उसमें से लिए हैं. हाँ, तो ये वर्ड्स आप ले सकते हो. यस संजय, यू कैन टेक फ्रॉम दैट. मुझे लगे कि ये बहुत अच्छे है. सो यू कैन, आई विल बी सेंडिंग द पीडीएफ. डोंट वरी, आई विल बी सेंडिंग द पीडीएफ. डोंट वरी. यस यस यस. ओके, नाउ दिस इज हाउ आई एम. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, आई विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन लाइक दिस. ये देखिए, एग्जामिनेशन ऐसा होगा. यू विल बी आस्क्ड 3 वर्ड्स ऑफ वोकैब फ्रॉम दिस. ठीक है? यू विल बी आस्क्ड 2 idioms and you will be asked 1 clue card from the list of all this clue card. So total exam ka jo weightage hai is going to be 10 marks. Are you getting the point? So you are going to be given from 10 marks. So you will be, the 3 marks are for, this will be for 3 marks. Ye 3 marks ka hai. Just a minute. This is going to be of 3 marks. Then idioms, 2 idioms, 2 marks, and finally 1 clue card
is equal to 5 marks. So total exam is going to be of 10 marks. Clear? Yes or no? तो 10 मार्क की एग्जाम होगी स्टार्टिंग फ्रॉम वेडनेसडे. सो आई वांट यू पीपल टू प्रिपेयर ऑन ऑल दिस टॉपिक्स. कल एग्जाम नहीं होगी. कल एग्जाम नहीं होगी. द एग्जाम विल गेट स्टार्टेड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो एंड यू विल बी आस्क्ड द टॉपिक्स. आपको पूछा जाएगा और मार्क्स दिए जाएंगे. फॉर एग्जांपल उसी वक्त आपको मार्क्स दिए जाएंगे. एनी डाउट्स और क्वेरी स्टूडेंट्स? Clear? Okay, I hope you enjoyed the session. I wanted to take grammar today. Yeah, I wanted to take grammar. Yeah. But then, it is almost getting very late, so I'm not taking grammar today. Yeah, we'll be getting within 1 or 2 days. I'll do one thing, students. I'll be sharing the video of this tomorrow. Don't worry. मैं इसका वीडियो भेज दूंगा आपको. You can go through it. Don't worry. Clear? Yeah. Did you enjoy the lecture? So I'm just signing off. I hope you enjoyed the lecture. Okay. So let me sign off right now. Thank you so much, students. Thank you. Thank you, Sanjay.